Hello everyone. Here I'll discuss chapter 10 of class 10th circles. Okay, first of all, definition of circle. A circle is a collection of all the points in a plane which are at constant or fixed distance from a fixed point. Okay, now see this diagram. Here the points A, B, C, D, E, F and G, they all are at equal distance from this point O. Okay, now the fixed point, ये जो fixed point होता है O, the fixed point is called center. Okay, this fixed point is called center of the circle and it is usually denoted by O. Okay, it is denoted by O. Now all these distances OA, OB, OC, OD, OE, OF and OG, they all are equal. Okay, the constant distance or the fixed distance is called the radius of the circle. Okay, the constant distance or this fixed distance is called radius of the circle and it is usually denoted by small r. Okay, it is denoted by small r. That means all these distances OA, OB, okay, all these distances can be represented by small r. Okay, because they are equal to the radius of this given circle. Okay, now see, as you already know about chords, segments, sectors of a circle, which you have studied in your ninth class. Now here the concept which we have to study is tangent to a circle. Okay, so what is a tangent to a circle? To know about tangent to a circle, consider a circle and a line. Okay, now there can be three possibilities. Suppose देखो एक circle है और एक line है, तो तीन डिफरेंट केसेस पॉसिबल हो सकते हैं. जो सबसे पहला केस है उसमें सर्कल और लाइन बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. सेकंड केस में सर्कल और लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं. एंड इन थर्ड केस जो सर्कल और लाइन है वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो यही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर आप एक सर्कल और एक लाइन को कंसीडर करो, कि या तो बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या फिर दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है, या एक सिंगल पॉइंट पे टच कर सकता है सर्कल को. ओके, सो ये जो फर्स्ट केस है इसको बोलेंगे हम द सर्कल एंड लाइन आर नॉन इंटरसेक्टिंग. ठीक है, तो इस केस में सर्कल और लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करते. दैट मीन्स लाइन एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट. तो उनमें क्या है, कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा. ओके, नाउ कंसीडर दिस सेकंड केस. तो सेकंड केस में इट इज ऑब्वियस दैट द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स. ओके, तो इस केस में क्या होगा, दो कॉमन पॉइंट्स होंगे. और जब कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, देन दैट लाइन, सपोज द लाइन पी क्यू हेयर, इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट लाइन इज सीकेंट. नाउ सी द थर्ड पॉसिबिलिटी. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि सपोज लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द लाइन टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. तो इसमें क्या होगा, ओनली वन कॉमन पॉइंट. ओके, तो हमें यही केस कंसीडर करना है. ओके, इन विच द लाइन एंड द सर्कल हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट. दैट मीन्स द लाइन जस्ट टचेस द सर्कल. तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट टू द सर्कल. नाउ दिस लाइन is called tangent to the circle. Okay, we have to consider only this case. Now see, from here the definition of tangent to a circle will be the line, okay, that intersects the circle at only one point. That means a tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. जो circle को सिर्फ एक point पे touch करेगी, that line is called tangent to a circle. Now see, ये जो point होगा जिसपे tangent और circle intersect करेंगे, this point is called point of contact. Okay, so definition क्या हो जाएगी point of contact की, the common point of tangent and the circle. तो यही तो common point है जो circle पे भी lie करता है और इस line पे भी lie करता है. Okay, so this common point of tangent and circle is called point of contact. या हम ऐसे कह सकते हैं the point at which tangent touches the circle is called point of contact. That means the tangent is said to touch the circle at the common point. Okay, now one more point here is there is only one tangent
there is only one tangent at a point of the circle. ओके, नाउ सी, अगर सर्कल के ऊपर आपको कोई पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. ओके, क्योंकि इस टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा, तो किसी भी एक पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट पास करवा सकते हो. सो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल. सी क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज थ्योरम. Now the theorem here is, first of all, statement of the theorem: the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Simple words में ये है कि this tangent xy will always be perpendicular to the radius OP through the point of contact. Okay, so xy is the tangent here, O is the center of the circle and this P is the point of contact. तो सबसे पहले देखो थ्योरम प्रूफ करने के लिए यहाँ पे गिवन, ठीक है, तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. You are given a circle with center O. Okay, a circle with center O and tangent xy, tangent xy at point P of the circle. That means this point P is the point of contact and OP is the radius. तो प्रूफ क्या करना है हमें? The statement of the theorem is clearly that this radius is perpendicular to the tangent. तो इसका मतलब जो OP है ना, it will be perpendicular to xy. ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है. The tangent is perpendicular to radius. That means ये जो एंगल होगा, देखो यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. आपको यही प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा. दैट मींस ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. प्रूफ देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको. प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P. ओके, एंड जॉइन OQ. ठीक है, तो मैंने इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस P पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट लिया, जैसे सपोज Q पॉइंट कंसीडर किया. आफ्टर दैट जॉइन OQ. ठीक है, नाउ सी, अब इस P पॉइंट के अलावा अगर आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, सपोज अगर आपने ये पॉइंट कंसीडर किया, इधर किया, यहाँ पे किया, ठीक है, सो एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट P, तो वो जो भी पॉइंट होगा ना, वो क्या करेगा, इस सर्कल से बाहर लाई करेगा. ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, देखो कोई भी पॉइंट है, सपोज मैं अगर इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, तो ये पॉइंट भी क्या है, दिस पॉइंट विल बी क्लियरली लाइंग आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि ये जो पॉइंट है P, ओके, दैट पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, ये तो सर्कल के ऊपर लाई करेगा. अब इसके अलावा आप अगर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हो इस लाइन पे, तो इस सर्कल के बाहर लाई करेगा. ओके, क्लियर? नाउ सी, अब क्या होगा कि दिस OP इज इक्वल टू रेडियस R. सपोज इस सर्कल की रेडियस R है. अब क्या होगा, क्योंकि Q पॉइंट जो है इस सर्कल से बाहर लाई करता है, दैट मीन्स यहां से और यहां तक सपोज अगर ये पॉइंट R है, तो इतना डिस्टेंस तो रेडियस के इक्वल होगा. तो इसका मतलब इस OQ का डिस्टेंस रेडियस से तो ज्यादा ही है. और ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है और आप सेंटर से उसका डिस्टेंस ले रहे हो, तो दैट डिस्टेंस विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन द रेडियस. ओके, सो मैं यहां से एक चीज क्लियरली कह सकता हूं दैट OQ इज ग्रेटर देन OP. ठीक है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा और ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, OP से ज्यादा होगा ऑब्वियसली. अब ये क्या है, दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन XY. तो अगर आप इस XY लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हो, ठीक है, OP डिस्टेंस है वो इन सब में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस हैपेंस for every point on the line XY except the point P. Okay, that is distance of any point, distance of any point on line XY from O is greater than OP. ठीक है, तो इसका मतलब
ये क्या कह रहा है कि अगर आप इस P के अलावा कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे इस लाइन पे, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा OP से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि OP तो रेडियस के इक्वल है, और बाकी आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लोगे तो ऑब्वियसली वो सर्कल से बाहर लाई करेगा, एंड दैट डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन रेडियस। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं OP इज द शॉर्टेस्ट, OP is the shortest of all the distances, of all the distances of the point O, of the point O to the points on XY. ओके, तो जितने भी पॉइंट्स आपने एक्स वाई पे कंसीडर किए, ठीक है, तो उन सबका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो ओपी से ज्यादा होगा। दैट मींस ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। अब देखो, किसी भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एक पॉइंट का और एक लाइन से, तो यू हैव टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप एक कंस्ट्रक्शन से वेरीफाई भी कर सकते हो। यू कैन टेक अ लाइन एंड अ पॉइंट। तो आप जब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस ड्रॉ करोगे उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर, तो आप उसमें ऑब्जर्व करोगे दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट वन। ओके, तो इसका मतलब अगर ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मैं यहां से क्लियरली कह सकता हूं दैट ओपी इज perpendicular to xy. Okay, so I can clearly state that the OP distance is perpendicular to xy. That means the radius is perpendicular to the tangent. और यही हमें प्रूव करना था इस थ्योरम में, that the tangent is perpendicular to radius through the point of contact. Okay, now see, ये जो मैंने बोला अभी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर सपोज ये एंगल 90 डिग्री गिवन है हमें, और मुझे ये प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, तो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं? अब देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस P पॉइंट के अलावा आप जो भी पॉइंट कंसीडर करोगे इस लाइन पे, जैसे मैंने Q पॉइंट कंसीडर किया, तो इस ट्राइंगल OPQ के लिए क्या होगा, ये OQ विल बी हाइपोटेनियस। तो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस तो ज्यादा ही होगा परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो जब हाइपोटेनियस होगा OQ, तो दैट मींस OP विल बी लेस देन OQ। ऐसी आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे तो वो इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस बनेगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, OP से ज्यादा ही आएगा। दैट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट वन। तो अगर ये OP शॉर्टेस्ट है, तो हम कह सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू XY। क्लियर? ओके, now 2 points here. First one is, we can conclude that at any point on a circle there can be one and only one tangent. Okay, ये हम इस थ्योरम से भी ड्राइव कर सकते हैं, because the radius is always perpendicular to the tangent. Okay, so सेंटर से और इस लाइन के ऊपर सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर पॉसिबल है। Okay, that means इस पॉइंट पे, at a point P, there can be only one perpendicular to this line. That means एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। Okay, now the second one is, the line containing the radius through the point of contact is also sometimes called the normal to the circle at the point. तो इसका मतलब ये जो रेडियस है ना OP, इसको हम नॉर्मल टू द टेंजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो होगा वो हमेशा टेंजेंट के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो अगर ये टेंजेंट XY है, तो the line passing through the center and perpendicular to this tangent is called normal to the tangent. Okay, now see, there are various questions based on this. First one is, how many tangents can a circle have? Okay, now see, a circle has infinite points. अब circle जो होता है वो infinite points से मिलके बनता है, and at every point one tangent is possible. तो overall tangents कितने possible होंगे? Obviously infinite number of tangents are possible. Okay, now fill in the blanks. First one is, a tangent to a circle intersect it in. ये अभी हमने डेफिनेशन में ही बताया था कि जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, टेंजेंट टू अ सर्कल, सो विल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है जो लाइन, दैट इज कॉल्ड सीकेंट टू द सर्कल। ओके, क्लियर? नाउ थर्ड वन इज, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कंसीडर दिस सर्कल। ओके, तो इस सर्कल पे अगर हमें कोई टेंजेंट गिवन है, सपोज दिस इज अ टेंजेंट AB। ठीक है, नाउ
यू हैव टू फाइंड आउट कि इस टेंजेंट के पैरेलल हम कितने टेंजेंट्स और ड्रॉ कर सकते हैं। ओके तो देखो, अगर ये इसके पैरेलल आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बनते हैं। ओके, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट। तो जो दूसरा पैरेलल टेंजेंट होगा ना, वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है उसकी कि वो इस टाइप से बनेगा। सपोज दिस इज टेंजेंट सी डी। उसका रीजन ये है क्योंकि जो टेंजेंट है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, तो क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होना चाहिए। बिकॉज अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो इसका डायमीटर है, सपोज पी क्यू, so this will act as transversal, okay, and these alternate interior angles are equal। ये एंगल भी क्योंकि 90 डिग्री का होगा। so since one pair of alternate interior angles are equal, then the lines will be parallel। तो मैं यहाँ से clearly कह सकता हूँ that AB is parallel to CD। okay, so the parallel tangents always are diametrically opposite to each other। okay, so lies on the end points of diameter। तो कितने मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो क्लियरली मैं यहां से कह सकता हूं कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। ये मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। तो ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर इज O। सो दिस OP इज इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और Q जो है वो टेंजेंट के ऊपर कोई पॉइंट है सच दैट जो लेंथ OQ है इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो एंगल दे रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब ऑलरेडी आपको पता है दैट रेडियस is perpendicular to the tangent। okay, so the angle OPQ will be 90 degree। now I can use Pythagoras theorem in this given triangle। okay, so using Pythagoras theorem in triangle OPQ, तो क्या हो जाएगा, hypotenuse square that is OQ square is equals to OP square plus PQ square। now we have to find out this length PQ। OQ is equals to 12, 12 square equals to 5 square plus PQ square। okay, 12 square is 144, 5 square is 25, so minus 25 equals to PQ square। now PQ square will be 144 minus 25 is 119, so PQ will be square root of 119। okay, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, बिकॉज दीज डिस्टेंसेज आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू रूट 119 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन डी। ओके।